Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Conexia High Flyers. Friends, in these episodes, we talk to you about emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters of such companies. We talk to them about their company's business model, their growth journey, and what are the kind of prospects investors could expect from these companies in the coming few years. And today, friends, we have got a very interesting company which is going to hit the capital market space from the SME segment. And the company's name today is VL Infra Projects Limited, and we have the privilege and pleasure of having the top management team. We have Mr. Rajgopal Reddy, Chairman, Managing Director, and CEO of the company. Uh, Rajgopal ji, thank you very much for sparing your valuable time with us today. I'm pretty sure that in this small, interaction, we'll be able to get good quality information from you, which will be very useful for all our viewers. फर्स्ट क्वेश्चन राजगोपाल जी जो बहुत बेसिक है if you could tell us what is the business model of our company, which are the product segment the company operates, and sir, if you could tell us your brief business journey right from the time you started operations. If you could tell us your experience and your journey in the last few years, so that we can understand your company's operations in a much better manner. VL Infra Projects Limited is an infrastructure company, basically into water sector, and we operate in canals, irrigation projects and building as well as on road projects. But compared to water sector, other parts of the work is very small. Means what in water sector we are executing around 85% of the work in our total turnover. Myself, Rajagopal Reddy. And actual my journey was started in 2003. I came to Gujarat as an employee in an organization in civil construction, like water sector only. From there, I have shifted to 3 companies. After that, I have started my business in 2014 with my experience and expertise. Initially started with the subcontracting works in 2014. In 2016, we got a small work in Gujarat named Anand location, Kambat area. There we have executed around 8 crores small work for the government of Gujarat, Gujarat Water Supply and Sewerage Board Department. After that, our company growth has started a little bit from step to step. In 2016, we got water supply projects in Madhya Pradesh in 4 different locations. एक धनपुरी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, एक उमरिया वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन लोकेशन पाली, वन कुरवाई वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट विदिशा डिस्ट्रिक्ट, वन इन रेवा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट. Those projects includes from raw water, initial stage means raw water, नदी से जो पानी लेने का है वहां से लेकर फ्रॉम देयर टू हाउस सर्विस कनेक्शन, हर एक घर का नल कनेक्शन तक का प्रोजेक्ट्स रहेंगे. वो मध्य प्रदेश वाला प्रोजेक्ट जो वो प्रोजेक्ट्स में फ्रॉम इंटेक वेल, नदी में इंटेक वेल बनाया हुआ है, फ्रॉम देयर वाटर ट्रीटमेंट बनाया हुआ है, नियर बाई सिटी का पास में वाटर ट्रीटमेंट बनाया. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर ट्रीट करने के बाद वो ओवरहेड टैंक्स चढ़ाएंगे. मींस ओवरहेड टैंक से हर एक घर का पाइपलाइन का थ्रू सप्लाई होगा वाटर. सो ये प्रोजेक्ट में हमारा ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एक्टिविटी, ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इंक्लूड होता है. मींस सारा एक्टिविटी हो गया इसी में एक प्रोजेक्ट में. ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट इज लाइक दैट ओनली, बट डिफरेंट साइजेस. एक 10 करोड़ का, एक 12 करोड़ का, एक 18 करोड़ का, ऐसा डिफरेंट साइज का प्रोजेक्ट्स है. वो प्रोजेक्ट्स का उसके बाद अपना 5 साल का ऑपरेशन मेंटेनेंस भी है. प्रेजेंटली इट इज गोइंग ऑन ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ दोस प्रोजेक्ट्स. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दोस प्रोजेक्ट्स वी गॉट द ऑर्डर्स इन गुजरात 2022 से. 2022 में हमारा गुजरात में ऑर्डर्स लेना स्टार्ट किया. मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वाटर सप्लाई बोर्ड से. तो अभी प्रेजेंट गुजरात में हमारा अराउंड 7 प्रोजेक्ट्स आर इन प्रोग्रेस इन डिफरेंट लोकेशंस नियर बाई अहमदाबाद, गांधीनगर, नियर बाई लोकेशंस में. इट विल बी अराउंड मींस अहमदाबाद से ऑलमोस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस गिनेंगे तो 100 किलोमीटर रेडियस में सारा प्रोजेक्ट हमारा चालू है. और अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग जो शुरू से जो वाटर छोड़ के इरिगेशन मींस कैनाल प्रोजेक्ट का शोल्डर प्रिपरेशन,
इस मेजर कैनाल वर्क नहीं जा सकता है बेस्ड ऑन आवर वॉल्यूम ऑफ द कंपनी, बड़ी कैनाल का नहीं कर सकता है। रोड प्रोजेक्ट में भी सेम सिचुएशन है, रोड प्रोजेक्ट करना जाएगा तो इट विल बी ए ह्यूज वॉल्यूम, बट हम लोग उसका रोड का शोल्डर वर्क होगा, शोल्डर में तो ड्रेन्स होंगे, इन अल्टीमेटली उसमें भी हमारा ड्रेन एंड वाटर सप्लाई का सिस्टम रहेंगे। ऐसा वाटर सप्लाई के साथ साथ रोड्स, इरिगेशन एंड बिल्डिंग वर्क का हमारा हैदराबाद में प्राइवेट वर्क्स का चालू है, रियल एस्टेट कंपनीज का इन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में वर्क्स, those works are of around 5% of the company volume only. Means बिल्डिंग में 5% रहेंगे, कैनाल का 5% वॉल्यूम रहेंगे, रोड का वर्क जो चलता है 5% रहेंगे, ये 15% निकल के 85% ऑफ द कंपनी इज इनटू वाटर सेक्टर ओनली। इन फ्यूचर हमारा तो क्रेडेंशियल वाटर का, इसके लिए इन फ्यूचर मींस कमिंग 1-2 साल में हम लोग उसका भी एलॉबरेट करेंगे। रोड वर्क एंड इरिगेशन सारा वर्क, बिल्डिंग वर्क, खुद का क्रेडेंशियल जैसे जैसे बनता जाएगा, वी विल एस्टैब्लिश द कंपनी इन दोज डिपार्टमेंट आल्सो। ओके, तो अंडरस्टूड। इनफैक्ट राजगोपाल जी बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। अभी मेरे को बताइए सर, ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वाटर सप्लाई का, कनाल का, इरिगेशन का, रोड्स का, बिल्डिंग का, सर ये सारे प्रोजेक्ट्स ईपीसी का प्रोजेक्ट्स होते हैं? पहले तो ये एक बात बताइए, is it only purely done on EPC kind of system, like Yes, so almost all the projects are into EPC mode only, except the building works. Building works are and real estate company works. So apartments जो बनाएंगे उसमें some part हम लोग execute कर रहे हैं, otherwise बाकी सारा EPC projects means 95% of the company वाले। Understood. सर अभी ईपीसी प्रोजेक्ट्स जो आपने बोला, बल्क ऑफ द बिजनेस ईपीसी प्रोजेक्ट से आता है, वाटर सप्लाई से आता है, तो मेरे को बताइए सर अभी हमारी कंपनी की ऑर्डर बुक एज ऑफ डेट कितनी है? और सर हमारे ईपीसी के बिजनेस में मैंने सुना है, ये काफी रेलेवेंट है ईपीसी कंपनीज के लिए, कि देयर इज सम अमाउंट ऑफ रिटेंशन मनी व्हिच इज केप्ट बाय द कस्टमर और बाद में उसको रिलीज किया जाता है। तो हमारे लिए सर रिटेंशन मनी कितना मोटा मोटी परसेंटेज होगा, तो कितना होगा? इफ यू कुड प्लीज टेल अस एंड टेल आवर व्यूअर्स दिस फैक्ट। यस सर, उसका परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में इनिशियल स्टेज में एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट गवर्नमेंट को ले 5% का परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना रहता है। ओके, दैट विल बी रिलीज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर 2 इयर्स। डिफेक्ट लेबिलिटी पीरियड रहेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद, उसके बाद 2 साल के बाद रिलीज होगा। हम रिटेंशन मनी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन मनी बिल टू बिल 5% डिडक्शन रहेंगे ड्यू टू कोविड टाइम से लेकर लास्ट मार्च तक वो 2.5% था, नाउ इट इज 5%। After completion of the project, we can get that. Okay. And sir, what is the order book now? Currently, order book कितना होगा हमारा? तो टोटल 340 करोड़ का ऑर्डर बुक था। आउट ऑफ दैट लास्ट मार्च तक अपना 180 करोड़ से एग्जीक्यूट हुआ है। बैलेंस ऑर्डर इज 160 करोड़। Oh, balance is 160 crore. 160 crore order balance we are having from April 1st. एंड सर इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, आपने बोला कि गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन विच स्टेट्स डज द कंपनी करंटली ऑपरेट? लाइक कितने स्टेट्स में हम काम करते हैं एट प्रेजेंट? गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये तीनों स्टेट्स में ज्यादा है। बाकी स्टेट्स में हमने सबलेट किया हुआ है, उत्तर प्रदेश किया हुआ है, कर्नाटका किया हुआ है। तो सारा स्टेट्स में हमारा क्रेडेंशियल जैसे बन रहे हैं, तो इसका बेस पे जहां जहां हमारा क्वालिफिकेशन सेट हो रहा है वो स्टेट में हम काम करने जा रहे हैं। नहीं, समझ गया। राजगोपाल जी अभी बताइए मेरे को कि सर ये जो स्टेट्स है, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बेसिकली टेल मी वन थिंग कि इसमें से हुआ द प्रोमिनेंट कस्टमर्स गवर्नमेंट के ही ज्यादातर प्रोजेक्ट्स होंगे या इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर के भी कस्टमर्स होंगे? तो इसके बारे में सर इफ यू कैन शेयर सम नेम्स फॉर अस। एक गुजरात में तो अपना स्पन पाइप कंस्ट्रक्शन कंपनी बड़ौदा का है, और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का तो है वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। और दूसरा प्राइवेट बॉडीज में आएगा तो HM इलेक्ट्रोमेक करके है। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का डिफरेंट डिविजन्स रहेंगे। मींस हमारा जो 7 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 डिविजन्स में वर्क्स चालू है। वाटर सप्लाई बोर्ड इन द होल इज डिफरेंट, बट डिवीजन वाइज देखेंगे तो हमारा 3 डिवीजन में काम चल रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, मेरे को नाउ ऑन अ लिटिल मोर मैक्रो बेसिस, राजगोपाल जी टेल मी वन थिंग दैट
in the water pipes segment, what is the size of the opportunity? कितना बड़ा मार्केट अगले 3 4 5 साल में हो सकता है इंडिया में? हमारे लिए ये मार्केट कितना इम्पोर्टेंट है और हम इसको कैसे कैपिटलाइज करेंगे? Any strategy or any thought process if you could tell us, on this market, which is really a big market, I know, but from you I want to know कितना बड़ा मार्केट है और हम इसको कैसे कैपिटलाइज करें? मार्केट इज वेरी ह्यूज सर, उसमें हम लोग कितना कर पाएंगे उतना ही देखना है अपने को। तो अपॉर्चुनिटीज ये तो ह्यूज। ओके, if I can grab, if I am supposed to want to work some work, I can grab that work, but for that the financial implications will be there. Okay, now Rajkumar sir, tell me one thing. What is the kind of I think you mentioned about the water supply opportunity. Now tell me one thing that in terms of competitiveness, like we have an industry where there's decent amount of competition, from other EPC companies. In what way, Rajgopal ji, are we different? हम हमारा काम दूसरों से बेहतर कैसे करते हैं? अगर 2-3 qualitative points if you can tell us कि भाई हमारी सर्विस क्वालिटी अच्छी है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, basically 2-3 qualitative points if you can share for our viewers in saying that we are slightly better than others in the same industry. Sir, if you can share your thoughts. क्वालिटी फॉर श्योर, क्वालिटी का कमिटमेंट है। हमने जहां भी काम किया वो यहाँ पे क्वालिटी का हमारा नाम तो अच्छा ही हुआ है। बट क्वांटिटी के लिए भी देखेंगे तो हमारा लास्ट 2-3 साल में जो भी टेंडर्स टारगेट करके किया हुआ है उसमें ऑलमोस्ट से 50-60% का स्ट्राइक रेट था हमारा काम लेने का भी, टू अचीव द टॉप लाइन एज वेल एज फॉर द बॉटम लाइन। ओके, अभी मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर ऐसा कभी हुआ है कि आपने प्रोजेक्ट टाइम के पहले डिलीवर किया है और आपको कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव मिला? बिकॉज नॉर्मली सर ईपीसी बिजनेस में होता है ना कि इफ यू डिलीवर द प्रोजेक्ट इन टाइम और बिफोर टाइम यू आर एलिजिबल फॉर सम फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो हैज द कंपनी मैनेज्ड टू डू दिस आल्सो इन द पास्ट और मे बी इट इज एस्पायरिंग टू डू इट इन फ्यूचर? अब अभी तक तो नहीं सर, वो ह्यूज वॉल्यूम वाला प्रोजेक्ट्स में ही ऐसा इंसेंटिव वाला सिस्टम अपना अभी तक जो एग्जीक्यूट किया 20-25 करोड़ का, 50 या अभी तो प्रेजेंट जो प्रोजेक्ट चालू है वो 50-60 करोड़ का वैल्यू साइज है। बट इसमें इंसेंटिव वाला सिस्टम है नहीं, वो 200-300 करोड़ का प्रोजेक्ट में इंसेंटिव का सिस्टम है। अच्छा, नहीं, अंडरस्टूड। सो ओनली इफ इट इज अ बिग प्रोजेक्ट देन यू गेट अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए इंसेंटिव सिस्टम नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत सारा प्लेयर्स है, तो कंपटीशन में इंसेंटिव वाला सिस्टम कहीं भी नहीं है ऐसा प्रोजेक्ट्स के। I think point noted, Rajgopal ji. Now tell me, Rajgopal ji, now let's come to the financial part. अभी मैं थोड़ा सा financials के बारे में देख रहा था सर, आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट पिछले साल 45 करोड़ का टर्नओवर था, आपका प्रॉफिट करीबन 2.2 करोड़ था जो पिछले साल 1.1 करोड़ था। और अभी जो पहला फर्स्ट 6 मंथ में देख रहा था फॉर FY24, इधर तो हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। तो सर ये इम्प्रूवमेंट किस कारण से हो गया? इफ यू कुड टेल अस व्हाट हैव बीन द की रीजंस फॉर द इम्प्रूवमेंट इन FY23। ऑलमोस्ट 1 करोड़ से 2 करोड़ प्रॉफिट हो चुका है, अभी 6 महीने में तो ऑलमोस्ट 3-3.25 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो पहले तो इम्प्रूवमेंट किस कारण से हुआ? एंड सेकंडली सर, नाउ सिंस दिस फाइनेंशियल ईयर इज ऑलरेडी ओवर, सर व्हाट इज योर आउटलुक फॉर FY25 विदाउट गिविंग एनी फाइनेंशियल नंबर्स? इफ यू कैन जस्ट टेल अस what are the signals you are getting from the ground, from the customers, and you can share the outlook for FY25 for us. Okay. अभी जो इंक्रीज हुआ है ऑलरेडी, जो इंक्रीज हुआ 2024 फाइनेंशियल ईयर सितंबर क्रेडिट के लिए, वो प्रीवियस 2022 में हमारा गुजरात का वर्क्स जो स्टार्ट हुआ है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम मींस छोटे पाइपलाइन से बड़े पाइपलाइन का प्रोजेक्ट समझ लीजिए, सिंपली कहना गया था। तो बल्क लाइन जैसे जाएगा आपको वॉल्यूम बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इतना ही इंक्रीज होगा। वॉल्यूम के साथ साथ आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगा। एग्जांपल में बताऊं तो एक आपको पीवीसी का छोटे पाइपलाइन डाल रहे, एक आप 100-150 किलोमीटर पाइपलाइन लेइंग करेंगे तो बहुत सारा हडल्स आएंगे, बहुत सारा लोकल इश्यूज आएंगे। उसका पैरेलली हम लोग माइल्ड स्टील पाइप, बड़ी साइज का पाइप लेइंग करेंगे तो उतना फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो आएगा, मींस 20 करोड़ में जो एग्जीक्यूट करता है आपको 20 करोड़ में यहाँ पे 10 किलोमीटर एग्जीक्यूट करना रहेगा, बल्क साइज में आएगा। तो सो 10 किलोमीटर काम करने में आपको एक्सपेंडिचर हो, ओवरहेड्स हो, एम्प्लॉइज का हो सकता है, ओवरहेड्स हो सकता है, सारा चीज ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका बेस पे हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सडन ग्रोथ का चांस मिला है हमको।
और ये फाइनेंशियल ईयर में आप जो बोल रहा था बिफोर टाइम कंप्लीशन का, हमारा एक प्रोजेक्ट है शीला टू दोल का वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। वहाँ पे सिविल वर्क चल रही है एट प्रेजेंट। पाइपलाइन भी ऑलमोस्ट 70% हो चुका है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। वो प्रोजेक्ट फरवरी तक का हमारा टाइम है। वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट इट बाय दिसंबर ओनली, मींस बिफोर 2 मंथ्स हम लोग कमीशन करके निकल जाए। once we complete this project, we can grab similar type of works with 2-3 times bigger. मीन्स आप 1 मीटर डाया का पाइपलाइन करेंगे, क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम 3 किलोमीटर तक क्वालिफाई हो सकता है। सो 3 मीटर का डाया 1 मीटर से 3 मीटर डाया जाएगा, ऑटोमेटिक वॉल्यूम बढ़ेगा। अभी 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो मैं 122 करोड़ का प्रोजेक्ट में जा सकता हूँ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। उस टाइम पे सडन ग्रोथ फिर से रेस हो सकता है, तो मे बी 24-25 में नहीं होगा, 25-26 में ऑटोमेटिकली ड्रास्टिक चेंज आएगा। आई थिंक अंडरस्टूड। चेंज इसके लिए आया था। अर्लियर बहुत सारा लोग क्वेश्चंस किया मेरे को, ऐसा लास्ट 2 साल में ग्रोथ कैसे हुआ है, ड्यू टू दिस ओनली। अर्लियर वी वर वर्किंग फॉर सप्लाइट वर्क्स ओनली। सप्लाइट वर्क में सप्लाई आइटम्स नहीं रहेंगे, उसके लिए सप्लाई आइटम के लिए कोई एम्प्लॉय का ओवरहेड्स का जरूरी नहीं है। इसका वजह से प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है। Okay, now Rajgopal ji, on the margins, I just wanted to get little clarity. Like अभी जो अपना मार्जिन है फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर 23 का जो मार्जिन दिख रहा है, कैन वी एज्यूम दैट दीज मार्जिन्स कैन कंफर्टेबली बी सस्टेन्ड, इवन इन द करंट ईयर? आई मीन इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए कि ये कम से कम इतना मार्जिन तो हम लोग मेंटेन कर पाएंगे? कंपलसरी मेंटेन होगा, और आईपीओ हिट होंगे तो ऑटोमेटिक उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। हमारा इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह जो डिक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा। 2-3% प्रॉफिट और इंक्रीज हो सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। Fine. Now, Rajgopal ji, we come to the most important question. Broadly, मैं पूछना चाहूंगा कि सर अभी कंपनी पब्लिक इशू करने वाली है, तो सर ये पब्लिक इशू मोटा मोटी what is the objective of this public issue? अगर if you could just share that for us, because I believe the pricing is not yet decided, but at least अगर जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में आप बता सके क्या ऑब्जेक्टिव है, और मोटा मोटी आप कितना पैसा रेज करना चाहते हैं? Objective is for working capital only. Okay. As I told, we are targeting 5-30% increase in previous years comparison. Okay. So उसका अचीव करने के लिए तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेंगे। फॉर दैट वी आर वर्किंग। Okay. और now when we talk about working capital, Rajgopal ji, normally हमारे बिजनेस में what is the working capital cycle from the time you deliver the service to the customer and then the customer pays you the payment? So what is the normal working capital cycle in our business? If you could it will be around from 3 to 4 months. 3 to 4 months. 3 to 4 months. Okay. And this is both applicable for both private as well as government customers? Yes. And basically now typically since the company is going public, sir, we would like to know that what is the profile of the management team? You are the founder and the promoter and managing director of the company. So sir, आपका main vertical focus क्या है? Business development है, नया business nurture करना है? If you could tell us how many people the company employs, how professional the company is, if you could please share some views on this. इसमें दूसरा डायरेक्टर है, एक एडमिन एचआर एंड एडमिन देखता है, वन मोर डायरेक्टर नागेश्वर करके, वो फाइनेंस अकाउंट्स टैक्सेशन का देखता है। पूरी टीम जो है ये तीनों रहेंगे। उसके बाद हमारा एम्प्लॉयज जो है मैक्सिमम इंजीनियर्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का रिलेटेड रहेंगे। दैट इज अ परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ 25 पर्सन्स एंड टेम्पररी विल बी अराउंड 35 पर्सन्स। इट्स टोटली 60 to 70, अराउंड 60-65 persons का total team. Okay, now Rajgopal ji, last question, which is very elementary but very important for all of us. Sir, we all know that there is risk in every business, in our business, in other business. Now, if you leave alone COVID, in our business, that is EPC business, specifically where I believe the large part of the business comes from the government. Sir, what is the major risk in our business? हमारी धंधे में सबसे बड़ा risk क्या है? And how have you managed to maintain this risk and still grow? If you could please share your thoughts. अपना बिजनेस में तो रिस्क फैक्टर गवर्नमेंट वर्क का, एक बार ऑर्डर आपको मिल गया तो दैट इज फ्रीज, मींस 100 करोड़ का ऑर्डर मिला तो आपका 100 करोड़ का ही ऑर्डर रहेंगे।
बट रॉ मटेरियल का जो रहेंगे उसका वैल्यू फ्लक्चुएट होता रहेगा। हम एक एवरेज टेंटेटिवली एक आइडिया लेके हम लोग टेंडर कोट करते हैं, बट वेरी रेयर केस सिग्निफिकेंटली मीन्स रेगुलर में नहीं होगा ऐसा केस। अपना कोरोना का टाइम पे ही हुआ है कि रॉ मटेरियल का रेट्स अबनॉर्मल भी हाई हो चुका है। ओनली बहुत रॉ सारे मटेरियल रिस्क कंपनीज के लिए तो उस टाइम पे थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, और दूसरा कुछ लोग तो ज्यादा दिमाग से सोचा है, जो भी है थोड़ा टाइम डिले करके डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट से अप्रूवल्स वगैरह लेके थोड़ा डिले करके काम एग्जीक्यूट किया भी है। कुछ लोग लास्ट में भी करके लास्ट कर चुका है। ऐसा केस इट नेवर हैपेंस, इट हैपेंस वंस इन 100 years। No, that is fine. में हर साल रेगुलर होगा नहीं ऐसा, अब नॉर्मल फ्लक्चुएशन से नहीं रहेगा जनरल। मुझे एक बात पूछनी थी राजगोपाल जी की, एग्जीक्यूशन और टाइम पे कंप्लीट करना प्रोजेक्ट, वो एक बड़ा रिस्क रहेगा। आई मीन बिकॉज आवर ट्रैक रिकॉर्ड हैज बीन रीजनेबली गुड, but then in this business is the execution very important to ensure that you get more business in future also? यस यस, अपना क्रेडेंशियल कैसा ही आगे बढ़ सकता है। मींस आप अच्छा एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो 10 लोग अपना को रेफर करेंगे। इवन गवर्नमेंट ऑर्डर्स टेंडरिंग रहेंगे तो भी दे विल से दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज गुड, वीएल इज गुड, ऐसा बोला जाएगा। ऑर्डर भी मिलने का चांसेस बढ़ते रहेंगे। आई थिंक राजगोपाल जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छी तरह से आपने हमको आपकी कंपनी के बारे में जानकारी दी। So, sir, please accept my best wishes to you, your entire management team, and sir, best wishes for your forthcoming IPO also. Thank you very much. Thank you, sir.